ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਏ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਮਰਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਕੀਲਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਪਿਕਚਰ। ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਐਲੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਢੇਡਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਇਹ ਕਦ ਸੀ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 84 'ਚ ਜਿੱਡਾ ਘਾਣ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ? ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ OTT ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਨੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ, ਜਿਹਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, ਸਾਊਂਡ ਲਾਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ डेडिकेट किया दिलजीत भाजी नू ते साडे सीनियर स्कूल दे इस करके। थैंक यू। एक तरफ तो कश्मीर डायरीज, केरला फाइल्स और धुरंधर जैसी मूवीज को रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मूवीज लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ रही है। लेकिन आज एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिसकी चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विदेश में हर घर में होती हुई नजर आ रही है। एक फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है, सतलुज, जिसको लेकर जैसे ही मूवी रिलीज होती है 3 जुलाई को, 2 दिन बाद इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब आज आम जनता ढूंढ रही है कि क्यों बैन लगाया गया इस मूवी के ऊपर। और ये मूवी अगर हम बात करें तो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी है ये। अगर हम बात करें तो पंजाब में पहले भी ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज बनी है जिनको लेकर विवाद जरूर खड़े होते हैं, लेकिन सतलुज
ऐसी मूवी है जिसको लेकर लगातार राजनीतिक माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बात करेंगे जसवंत सिंह खालड़ा जी की। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिन्हें लोग जानते हैं, मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहे और एक पहचान बन गए, एक ऐसी शख्सियत बन गए जिनको लेकर आज तक और युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। 1984 से लेकर 1994 तक उन्होंने आवाजें उठाई और किस मुद्दे पर आवाज उठाई? अज्ञात शवों को लेकर। वो चाहते थे कि जो अज्ञात शव हैं उनकी एक पहचान मिले, वो सामने आए कि वो कौन लोग हैं जिनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसी के बेस पर एक मूवी रिलीज होती है। 6 साल इस फिल्म को बनने में लगे। पहले नाम रखा गया पंजाब 95, लेकिन उसके बाद पिछले साल, ताकि ये मूवी कंट्रोवर्सी में ना आए, नाम बदल दिया गया। दिलजीत दोसांझ मेन कैरेक्टर। लेकिन उसके बाद क्यों ये फिल्म विवादित है, क्यों ये फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज शायद आपको मिलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट परमवीर जी, कहीं ना कहीं सीनियर लीडर माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। सर, स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हम आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सतलुज। सर, ये मूवी को बैन जरूर किया गया, लेकिन अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मूवी को दिखाया जा रहा है। सर, सामाजिक तौर पर जब आप इस मूवी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोग देते हुए नजर आ रहे हैं? शिप्रा मैम, वेरी थैंकफुल टू यू, आज आपने दोबारा अपने चैनल पे बात करने का चांस दिया। मैम, बहुत सीधी सीधी मूवी है। जो उस टाइम के फैक्ट्स थे, जो उस टाइम पंजाब में हुआ ब्लैक टाइम्स के दौरान, सिर्फ उसी को चित्रित किया गया है। वही सारी कैरेक्टराइजेशन है, वही जो असल में हुआ वो दिखाया गया डायरेक्टर की तरफ से। और फिल्म का जो काम करने का सारी टीम का जो स्टाइल था, उसमें किसी को भी किसी की निंदा नहीं है, किसी धर्म मजहब के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं है, एक एक्शन भी नहीं है। एक होता ना कुछ इनडायरेक्टली दिखा दिया जाता है, वैसा भी नहीं है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मिस्टर खालड़ा, उन्होंने ना वो किसी धर्म के अगेंस्ट थे, ना वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी ह्यूमन राइट्स की, और सरकार की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसकी अकाउंटेबिलिटी खड़ी करी। कोर्ट गए, बड़ा कुछ करा, आवाज उठाई देश विदेश में जाके। तो इस पे बेस्ड फिल्म है। जो पंजाब का इतिहास है, ये हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे का ये लैंड, ये जगह, ये खित्ता सेंटर रही है, प्रतीक रही है कि यहाँ भाईचारा रहता है। एक कौम 47 में गोरों ने रेड क्लिफ लाइन खींच के अलग कर दी, हिंदू सिख रह गए। हिंदू सिखों के इतिहास में अगर एक थोड़ा सा बैड चैप्टर है, वो 84 से लेके जो लगभग 10-12 साल एक जो गलत समा चला पंजाब में, गलत हवा चली, कुछ भी कह लो उसको, वो रही भाईचारा तोड़ने के लिए। लेकिन पंजाब की आप स्ट्रेंथ देखिए, पंजाब की सिंसेरिटी देखिए कि उस काले दौर से भी पंजाब दोबारा उठा और हिंदू सिख और सारी कौमें मजहबें यहाँ एकता से दोबारा रहने लगी। जो एजेंसीज, जो ताकतें पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहती थी, उन्होंने फॉर द टाइम बिंग तो डिस्टर्ब किया, लेकिन आज भी वही लोग, वही कौम, वही मजहब, सारे यहाँ इकट्ठे एक तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, राइट। और साथ साथ घर है। यहाँ पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ताकतें, उनको लगता है कि हम यहाँ पे किसी ना किसी तरीके अपनी ताकत इस्टेब्लिश करें, वो पंजाब में ऐसी खुराफाती बातें करके, ऐसी सांप्रदायिकता फैलाकर जो हार्मनी है यहाँ पे सभी लोगों की आपस में, पीस को डिस्टर्ब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये उन लोगों की बात है। सो देयर इज नथिंग बैड इन द मूवी विद रिगार्ड टू एनी हिस्टोरिकल इवेंट। एंड जो मिस्टर खालड़ा थे, वो भी किसी धर्म या उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ रहे थे। और नॉट ओनली दी सिख people he was fighting for, he also fought for the Hindu bodies which were missing. So बड़ी सिंपल सी बात है,
पर ये लोग जिनकी बुद्धि छोटी है, जिनको लगता है कि हम बोल देंगे और कुछ ना कुछ और सनसनी फैल जाएगी और सारे लोग पीछे लग जाएंगे, ये आजकल सांप्रदायिकता जो राजनीति में घुस गई है ना, धर्म घुस गया है राजनीति में, तो उसका ये नया बुखार चढ़ा है लोगों को, तो ये लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें, जैसे हम जसवंत सिंह खाड़ा जी की बात कर रहे हैं, सर 10 साल उन्होंने जो लड़ाई लड़ी ह्यूमन राइट्स को लेकर 1984 से लेकर 1994 तक, लेकिन 6 नवंबर 1995 में अमृतसर में उनके घर के बाहर से उनको अब किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। उसके बाद 6 पुलिस अधिकारियों के ऊपर केस भी दर्ज होता है, बहुत एक लंबी स्टोरी चली है। लेकिन उसके बाद अगर आज पंजाब को सच दिखाने की कोशिश की गई है मूवी के जरिए, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है। हर एक पार्टी, विपक्षी पार्टी धड़ल्ले से बोलती हुई नजर आ रही है। बैन ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी बंद नहीं हो रही। क्या लग रहा है एक मूवी को लेकर इतना राजनीतिक प्रेशर होना चाहिए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अब तक मूवी देखी नहीं जी, या जो हिस्ट्री को सच्चाई में जानना नहीं चाहते, वो थोड़ी सी एक चीज पकड़ लेते हैं, उसको घिसाते हैं, उसको पिटाते हैं, उसका ढिंडोरा पीटते हैं, खराबी करते हैं, क्योंकि हल्की बुद्धि होती है और हल्के उनके बयान होते हैं। अब कहने को इतने इतने बड़े बड़े राजनेता क्या कुछ बोल रहे हैं आपके सामने है, उनसे इतने सीनियर लोगों से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, आवाम एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो ऐसी हल्की शब्दावली बरतें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके बताएं। राइट, मूवीज, अनेकों मूवीज इस देश में चली हैं, राइट। कभी किसी मूवी से आपको लगा कोई माहौल खराब हुआ है? जैसे हमने पहले बात की, धुरंधर आई, कश्मीर डायरीज आई, केरला फाइल्स आई, उसको तो रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है ऐसी मूवीज का। वो मूवीज ऐसी थी जो एक्चुअल में उनका रिएक्शन ये आया, आधी ऑडियंस ने बोला ये ठीक है, आधी ऑडियंस ने बोला ये प्रोपेगेंडा मूवी है। लेकिन आप ये सतलुज मूवी देखोगे, आप 100% कहोगे कि हाँ इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। किसी धर्म के अगेंस्ट कोई शब्द नहीं यूज किया गया, किसी धर्म की निंदा, किसी आदमी की निंदा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की निंदा नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की ह्यूमन राइट्स की लड़ाई और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, ये है उसका सब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दाढ़ी, केस और दस्तार एक आदमी के लगी, अगर वो करेक्टर है, राइट, तो आप वो लोग मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से इसको जोड़ के देखना, तो वो अपना फ्रेम है, अपना चश्मा है उनका देखने का, वो सांप्रदायिक तरीके से देखते हैं। लेकिन जो देश ये है, दिस इज अ सेकुलर नेशन, पंजाब इज अ सेकुलर स्टेट। पंजाब सबको प्यार करता है, पंजाब में सभी मजहब भाईचारे से रहते हैं, एकता से रहते हैं, और देश की एकता अखंडता को स्थायी रखने के लिए, परमानेंट रखने के लिए पंजाब ने हमेशा कुर्बानी की है। यहाँ पे जैसे ऑनरेबल सीएम सरदार भगवंत सिंह मान बोलते हैं कि पंजाब में इतनी जरखेज धरती है, हर बीज उग जाता है, हर फसल हो जाती है, लेकिन नफरत का बीज यहाँ नहीं उगता। जो ये लोग उगाना चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। जी सर, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सीनियर लीडर हैं, साथ ही साथ आप एक एडवोकेट हैं, हर एक कानूनी दाव पेच को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, अगर ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को अगर बहुत तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है, तो इसका फैसला कौन लेगा? क्या एक आम दर्शक लेगा? क्या राजनीतिक लीडर्स लेंगे? कौन इसका फैसला लेगा? मैम देखिए, पहली बात तो इसमें कोई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किए गए। जो असल में हुआ था, राइट, उनके आसपास ही सौ के कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस पे उन्होंने बात की, उसकी लड़ाई लड़ी और वो दिखा दिया गया है। आप उसमें मतलब क्रिटिसाइज करो दिलजीत को, एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, राइट। अकबर पे मूवी नहीं बनी, बिल्कुल, और मतलब मैं नाम लूं, 100 नेपोलियन पे मूवी बनी है, जूलियस सीजर पे मूवी बनी है, राइट। इतने इतने बड़े जो योद्धा हुए हैं उन पे मूवी बनी है, या जिन लोगों का सुभाष चंद्र बोस पे मूवी बनी है, भगत सिंह जी पे मूवी बनी है। हर बंदे के अपनी अपनी एक हिस्टोरिकल लाइफ टाइम था, उन्होंने वो जिया, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया, देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। करतार सिंह सराभा जी पे मूवी बनी है, तो वैसे ही खालड़ा साहब ने ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ी, उनका नाम था और उनकी मूवी बन गई। इसमें बड़ा मसला क्या है? कहीं भी मूवी आप देखो, मैं चाहता हूँ जो लोग शोर मचा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर किसी धर्म के अगेंस्ट है, किसी फिरके अगेंस्ट है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। यू डोंट वॉच द मूवी, राइट, लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये तो ऐसा है कि जिस शहर को आपने आज तक देखा नहीं, आप यहाँ बैठ के जज कर रहे हो कि उस शहर के हालात बड़े खराब हैं। तो शहर में जाओ, घूमो, पता चले हालात खराब है कि क्या अच्छे हैं। सो दिस इज द थिंग। बिल्कुल सर, आप भी एक लीडर हैं, अगर हम बात करें तो ये तो एक कॉमन सी चीज है कि ऑपोजिट पार्टीज होती हैं, उनका काम होता है
कुछ ना कुछ बोलना। सर, हम बड़ी रिस्पेक्ट से कहेंगे कि पॉलिटिकल फिगर है रवनीत बिट्टू जी, हमेशा है ना बहुत बहुत बेबाकी से आवाज उठाते हैं। लेकिन जैसे ही सतलुज मूवी के ऊपर बात आई तो उनकी कमेंट्री शुरू होगी। सबसे पहला उन्होंने ये कमेंट किया दिलजीत दोसांझ पे कि वो तो खालिस्तानी है, साथ ही साथ जहां उनको पैसा मिलता है वो वहां के हो जाते हैं। कभी उन्होंने पंजाब के बारे में नहीं सोचा, अगर पंजाब के बारे में सोचा होता तो यहाँ पे सेटल होते, क्यों विदेश में जाके बैठे हैं, क्यों खालिस्तानियों का साथ देते हैं, क्यों पैसों के पीछे भागते हैं, क्यों इस तरीके की मूवीज में वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मूवी बनाई है मैंने। मैम, बिट्टू जी ताकत के पीछे भागते हैं, ताकत के लिए पाला बदल लेते हैं। जिस आदमी ने, आई विल कोट राहुल गांधी जी ने उनको टिकट देके एमपी बनाया, उससे पहले पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया, उसी आदमी से उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे सुन लिया, लुक अ ट्रेटर फ्रेंड इज कमिंग। तो ये कमाई है बिट्टू जी की, राइट। एंड जो आपका गॉड फादर हो एक टाइम पे, आपका लीडर हो, वही आपको ट्रेटर बोल रहा है। तो इससे बड़ा तो मेरे को लगता है जिंदगी में आज तक सबसे बड़ा खिताब अगर बिट्टू जी को मिला है वो ये मिला है कि राहुल गांधी जी ने, जब although I have no interest in Congress or BJP or any other party than mine, but जो राहुल गांधी जी ने उनको संसद की सीढ़ियों पे ट्रेटर खिताब दिया, वो उनकी आज तक का सबसे बड़ा खिताब है जो बिट्टू जी के नाम पे पड़ा होगा। एक बात, शायद वो रिस्पेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, यू कैन से दैट। तो अभी फिर उनको लगा कि कांग्रेस थोड़े हल्के दिनों में चल रही है तो बीजेपी की तरफ चल गए, बीजेपी में जाके राज्यसभा चले गए, सेंटर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। बिट्टू जी नहीं ताकत के पीछे भाग रहे, ये दिलजीत पाजी पे आवाज उठा रहे हैं कि पैसे के पीछे। ही इज अ आर्टिस्ट। उनके सामने कोई स्क्रिप्ट आई, उनके सामने सैकड़े स्क्रिप्ट्स आती हैं, वो उनकी चॉइस है ना, उन्होंने कोई मूवी करनी है नहीं करनी। हाउ कैन यू क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन करता? आप जहां जाते हो इलेक्शन लड़ रहे हो, कभी जलालाबाद भाग रहे हो, अनंतपुर साहब भाग रहे हो, फिर आप लुधियाना से लड़ रहे हो, फिर आप राजस्थान से एमपी चुने गए हो, आप भी तो अपॉर्चुनिस्ट हो सबसे बड़े। वो तो अपना किरदार निभा रहे हैं एक, आप तो अपॉर्चुनिस्ट। राजनीति की हद कर दी आपने, अपनी माँ पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी ने आपको सारा कुछ दिया, राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन जिस पार्टी की वजह से आपका नाम है, जिस पार्टी ने आपके दादाजी को मुख्यमंत्री बनाया और उनका नाम बेच बेच के, पोस्टरों पे फोटो लगा लगा के, फ्लैक्स पे फोटो लगा लगा के, मीडिया पे बात कर करके आपने वोटें बटोरी, राइट। और उसी पार्टी को आपने छोड़ दिया। हु इज अ बिगर अपॉर्चुनिस्ट? देन यू गो इनटू द बीजेपी। अभी भी आपकी लालसा नहीं खत्म हुई, अब आप बीजेपी आपको दोबारा एमपी नहीं बना रही, बीजेपी आपको शायद मिनिस्ट्री से भी बाहर कर रही है, क्योंकि एमपी नहीं रहोगे तो मिनिस्टर के अंदर में कैसे रहोगे। तब आपको लगता है कि अब मैं कोई हल्की फुल्की ऐसी बातें करूं, सांप्रदायिक यहाँ दंगा भड़काऊं, यहाँ शोरगुल करूं, यहाँ मजहबों को आपस में लड़ाऊं, और बीजेपी शायद मेरे को उठा लेगी दोबारा से, बड़ी ताकत दे देगी। अपॉर्चुनिस्ट आप हो, ताकत के पीछे आप भाग रहे हो, लड़ाई करवा के अपनी सत्ता, बड़ी मतलब एक पद और कुर्सी आप लेना चाहते हो। सो बिट्टू साहब को पंजाब के पीस एंड हार्मनी के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के भाईचारे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी कुर्सी के बारे। बस करो यार, 3 बार एमपी रह लिए, केंद्र में वजीर रह लिए, और क्या चाहता है आदमी? इससे बड़ा क्या बनना चाहते हो? सब्र करो, इस पंजाब ने आपको सब कुछ दिया, उसका धन्यवाद करो, वहां आप आग लगाना चाहते हो। सो बिट्टू साहब जो कर रहे हैं वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है। प्रो बीजेपी होगी वो, जहां दंगा होता है, जहां फसाद होता है, जहां लड़ाई होती है, आग लगती है, वहां बीजेपी आगे बढ़ती है। ये देश की हिस्ट्री रही है, ये बीजेपी के चलने से लेके अब तक की उनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन जहां जहां उन्होंने सरकार बनाई वहां लेटर ऑन क्या होता रहा, राइट। तो बिट्टू जी वैसा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये एक बात समझ लेनी चाहिए, पंजाब इज अ स्टेट, राइट, विच लिव्स विद सेकुलरिज्म, विच लिव्स विद हार्मनी, पीस, टॉलरेंस ऑफ ईच अदर, राइट। तो पंजाब में जो ये लोग राजनीति, जैसी राजनीति ये करना चाहते हैं, वैसी कभी नहीं होगी।